کہ کربلا کے بعد کا معاملہ کیا ہے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہمیں کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جب ہم اندازہ لگائیں تو پہلے ہم امام حسین کے والدین کو دیکھیں۔ امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انہیں مقام دیا، اتنی بڑی ان کو عظمت ملی، اتنی بڑی ان کو شان ملی کہ خود مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنتو مولاہ فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا کی شان۔ اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں، اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار، امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا، ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو، جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، میرے نبی کی آگوش مبارک میں دے دیا۔ میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ آ گئے، حضرت علی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک نبی کی اجازت نہیں ہوگی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے، جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار ہمیں اجازت دے دے، آج تیرے محبوب کے گھر میں محبوب آیا ہے، آج تیرے محبوب کے گھر میں اس کا لاڈلا حسین آیا ہے کہ ہم کیوں نہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ حسین کی آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو، پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں، میرے نبی کے مکان میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے آ رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزماں کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین
حسین کے نام سے جانے گی, جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی. آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو. ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا. نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے, جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے. جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے. حضرات گرامی امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا, میری نظر ایک دن زمین پر پڑی, میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے. میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے, اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے, اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے. نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں. اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا. حضرات گرامی یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر کسی کے پیر میں پولیا ہے تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے, اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. فرشتے نے مذاق اڑایا, اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا. وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے, میرا رب بھی خوش ہے, آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں. یا رسول اللہ آج نوازے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ, آج میرا نواسا آیا ہے, آج میرا شہزادہ آیا ہے, مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا. اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں, حسین کی آمد کی خوشی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے پروردگار میرے ہاتھ اور پیر دونوں واپس کر دے. میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا. میرے نبی نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے, جو جس چادر میں حسین لیٹے ہوئے تھے اس چادر کا ایک کنارہ اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر مس کر دیا. قسم خدا کی اس کے ہاتھ بھی واپس آ جاتے ہیں, اس کے پیر بھی واپس آ جاتے ہیں. وہ امام حسین جس کی چادر کا ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں. اللہ اللہ وہ امام حسین ہے, فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے. فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے, تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے. یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے. صحابہ کرام اندر آ رہے تھے. حضرت گرامی امام حسین کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں. صدیق اکبر مبارکباد دے رہے ہیں, فاروق اعظم مبارکباد دے رہے ہیں, عثمان غنی مبارکباد دے رہے ہیں. علی گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو, فاطمہ گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو. حضرات گرامی وہ فرشتہ جس کے ہاتھ اور پیر واپس آئے تھے سب خوشی منا رہے تھے, اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا آقا آج جس نواسے کی آمد پر اتنی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے, جس نواسے کی آمد پر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں, جس نواسے کی آمد پر صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں, اسی نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے, اس نواسے کو آپ کا نام لینے والے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے. میرے نبی نے فرمایا کیسی بات کر رہا ہے, ابھی میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے, ابھی میرا نواسا اس دنیا میں آیا ہے, ابھی میرے نواسے کی عمر ہی کتنی ہے اور ابھی سے تو میرے نواسے کی شہادت کی خبر سنا رہا ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے فرشتہ کہ آپ بتائیے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ کے اس پیارے لاڈلے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کے امتی شہید کر دیں گے. جبرائیل نے وہاں کی مٹی لا کر کے دی, کہا آقا جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. میرے نبی نے وہ مٹی سلمہ کو دی تھی جنہوں نے ایک شیشی کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا. حضرات گرامی یہ بات بھی میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا, یہ مٹی کب خون بنی تھی. حضرات گرامی میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کو کیسے پتا چلا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آقا اس فرشتے کو شہادت کی خبر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آقا یہی تو وہ فرشتہ ہے جسے اللہ پاک نے امام حسین کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے پیدا کیا ہے, اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین شہادت کا جام پی لے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جب میدان کربلا میں بنے تب سے لے کر کے قیامت تک یہی فرشتہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ قیامت تک حسین کے مزار پر اپنے نورانی پروں سے ہوا کرتا رہے
और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है इमाम हुसैन की। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है। सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हज़रात गिरामी, ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हज़रात गिरामी, ये घराना बड़ा ही अजीम घराना है। लेकिन मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे से आजमाइश को दूर फरमा दे। मेरे नबी के दस्ते मुबारक एक दुआ के लिए दराज हुए थे। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरे बेटे हुसैन की रजा है। ए मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चलती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हज़रात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चलते चलते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए, हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हजरात, उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर, जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे एक सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहब व लइब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे फला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ इस शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हज़रात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। अब आइए जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हज़रात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे
दिखाया करते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने मुकद्दस लबों से पोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद, जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता हूं। मेरे नबी ने जन्नती फूल फरमाया है। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा देख करके सोच करके बताओ, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल पुरतरा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल फतेहगंज की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पाकिस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन यही फूल अगर मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर के खिले, नबी का नवासा बनकर के खिले, तो ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला में 3 दिन का प्यासा रखा जाएगा, तब भी ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत में लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे बेटे हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। मेरे आका हुसैन अपने नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मदीने में हुसैन, मदीना हुसैन छोड़ने के लिए जा रहा है। मेरे नाना आपका नवासा आपसे बहुत दूर जा रहा है, अपने नवासे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने नाना की मज़ार पाक से अपनी वालिदा के मज़ार पाक पे आते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी आपका बेटा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अपने बेटे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पे आए, मैं तारीख लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात बैठती हुई चली जाए। मेरे आका हुसैन कहते हैं, ए मेरे भाई हसन, अपने भाई हुसैन का सलाम कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, भाई हसन आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है, मैं अब मेरा सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अब ये छोटा सा काफिला मेरे आका हुसैन का है, मदीने के बाहर सामान्य सफर तैयार किया जा रहा है। मदीने के बूढ़े बाहर निकल करके आ गए, औरतें बाहर निकल करके आ गई, बच्चे बाहर निकल करके आ गए, जवान बाहर निकल करके आ गए। बच्चे रो रो के अर्ज करते हैं, आका हुसैन मदीना छोड़ करके मत जाओ। औरतें हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानो से कहती हैं, आप हुसैन से कहिएगा कि वो मदीना छोड़ करके ना जाएं। उन्हें देख लेते हैं तो नाना मुस्तफ़ा की याद हमारे दिलों में ताज़ा हो जाती है। आका हुसैन से अर्ज कीजिए मदीना छोड़ करके ना जाएं। सहाबाए किराम, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताबईन वहां पर मौजूद हैं जो अर्ज कर रहे हैं कि आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना छोड़ करके मत जाइए। मेरे आका हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था, मेरे आका हुसैन ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। हजरात अब जरा एक बात आप मुझे बताइए, आपके कुरतरा में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा की जियारत की होगी, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा, जिन्होंने हज किया होगा। जरा उस हाजी साहब से आप पूछिए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो दिल में नबी की मोहब्बत लेकर के जाए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाए, जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाता है, वो वहाँ के जलवों में नहा करके आता है। और जो नबी की अदावत लेकर के यहाँ से जाता है उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। मदीना जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। मदीने की सरजमीन तो वो सरजमीन है। आज उलमा फरमाते हैं कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे अपने घर की भी याद आती है, उसे अपने अहले खाना की भी याद आती है, उसे अपने जमीन जायदाद की भी याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है, उसे अपनी प्रॉपर्टी की भी याद आती है। लेकिन जब वो हाजी मक्के से मदीना पहुंच जाता है तो मदीने की मिट्टी में, मदीने की सरजमीन में ये खासियत है कि जब हाजी मदीने में पहुंचता है तो बस नबी के रोजे का एक बार दीदार करने के बाद में वो दुनिया व मा फीहा से बेनियाज हो जाता है, बस नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क में सरशार हो जाता है। ना तो उसे घर की याद आती है, ना तो उसे अपने अहले खाना की याद आती है। आज इस वक्त जो हुकूमत है सऊदी में, वो हाजी को या तो 8 दिन मदीने में रखती है, और कोई बहुत ज्यादा किस्मत का सिकंदर है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है। इससे ज्यादा मदीने में ठहरने का हुक्म नहीं है। हजरात आज जो हाजी जाता है वो मदीना मुनव्वरा जब पहुंचता है, नबी के
रोजे का जब दीदार करता है तो सुबह शाम नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता रहता है, शाम हो तब भी दुरूद पढ़ता है, सुबह हो तब भी दुरूद पढ़ता है, फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है। हजरात नबी के जलवों में गुम रहता है। लेकिन जब इसके 8 दिन पूरे हो जाते हैं तब ये हाजी के कानों में एक सदा आती है, इस हाजी के कानों में एक आवाज आती है कि फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, उनको अब मदीना छोड़ना है, अब वो मक्के के लिए रवाना होंगे, फला नंबर की बस फला जगह पे खड़ी हुई है। हाजियों से गुजारिश है कि वो अपना सामान सफर बांधे और बस के अंदर जाकर के बैठे, अब उन्हें मक्के के लिए निकलना है। हजरात जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है तो हाजी की दिल की कैफियत बदल जाती है, एक इज़्तिराबी हालत हो जाती है। हाजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी के रोजे पे जाता है हाजिरी के लिए, नबी की सुनहरी जालियों को पकड़ करके रब की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार अगर मुझे दौलत दे, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये हाजी की हालत है। ये हाजी शराफत हुसैन साहब हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की कैफियत क्या है, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे इन्होंने क्या क्या देखा है। हाजी जब मदीने की सरजमीन को छोड़ने का ऐलान सुनता है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसुओं को आस्तीन से पोंछते हुए अपने सामान्य सफर को तैयार करता है, अपने सामान्य सफर को बांधता है और जब अपनी सवारी की तरफ आता है तो मुड़ के मदीने की तरफ देखता है, मुड़ के नबी के गुंबद खजरा की तरफ देखता है और जब अपनी सवारी में बैठ जाता है तो जहां तक गुंबद खजरा नजर आता है, जहां तक नबी का रोजा नजर आता है, जहां तक नबी का मुकद्दस मज़ार पाक का मीनार नजर आता है, तब वहां तक हाजी मुड़ के मदीने को देखता रहता है, मुड़ के मदीने की तरफ देखता रहता है। अरे अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ के रास्ता देखा। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के दिल की हालत का ये आलम है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हाजी जो 8 दिन मदीने में रहे, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जो सुबह भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो शाम को भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो फजर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो असर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मदीने में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मदीने में पढ़ता रहा, जो सुबह शाम नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने की सरजमीन पे गुजारी। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल ये है कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का मदीना छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। मदीना छोड़ रहे हैं मेरे आका हुसैन, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मुड़ के मेरे आका हुसैन मदीने की तरफ देख रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने पूछा था, भाई अब आप मदीने की तरफ क्या देख रहे हैं? तब मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज कहीं मदीना हुसैन से छूट रहा है। मक्का मुकर्रमा पहुंचे मेरे आका हुसैन, हज ज़िलहिज्जा का महीना था, लोग हज करने के लिए पहुंचे हुए थे। कोई काबे का तवाफ कर रहा था, कोई सफा मरवा की दौड़ लगा रहा था, कोई मीना में कुर्बानी कर रहा था, कोई शैतान को कंकरिया मार रहा था, कोई आबे ज़मज़म पी करके अपने शिकम को सैराब कर रहा था। मेरे आका हुसैन के किसी साथी ने कहा, हुसैन बहुत अच्छा मौका मिल गया, हुसैन गोल्डन चांस मिल गया, आओ हज कर लेते हैं, आओ बहुत अच्छा मौका मिल गया है, काबे का तवाफ कर लेते हैं, सफा मरवा की दौड़ लगा लेते हैं, आओ कुर्बानी कर लेते हैं, आओ आका हुसैन शैतान को कंकरिया मार लेते हैं। तब मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है, हुसैन पे जो हज फर्ज था हुसैन ने पहले अदा कर दिया, अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है, अब हुसैन पर इस्लाम की अजमत बचाना फर्ज है, अब हुसैन पर इस्लाम का वकार बचाना फर्ज है। मेरे आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर, हुसैन के नाना ने इस इस्लाम को जब फैलाना हुआ तो मक्का छोड़ा था और मदीने आए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, मक्के में आ गया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत रात मेरे आका हुसैन मक्के से करबला के लिए रवाना हुए। शायर कहता है, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने
نبھانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی۔ دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسینہ جسر کو کٹانے چلے ہیں، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جنہیں کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسینہ جسر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے، شہادت میں نے بیان کر دی ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر تمام جانثار اور تمام اہل بیت اطہار، تقریباً 17 گھر والے تھے میرے آقا حسین کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی کہ آپ اپنے دشمن کا پیر، آپ اپنے دشمن کا نام پیر کے ناخون سے پتھر پہ لکھ دیا کرتے تھے۔ اتنی طاقت حضرت عباس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کے بیچ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عباس قد کے بارے میں حضرت عباس کے بتا رہا ہوں، جب حضرت عباس برابر میں اونٹ کے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اپنا دست مبارک اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ہوگی، کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت ہوگی، کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہوگی۔ اسلام کا سپہ سالار میرے آقا حسین نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت عباس کو بنایا تھا، پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا، پرچم اسلام میرے آقا حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عباس ہیں۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب حضرت علی اکبر بھتیجے تھے، حضرت عباس چچا تھے، لیکن حضرت عباس علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد میں لمبے تھے۔ جب حضرت عباس علی اکبر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو سیدھے نہیں چلتے تھے بلکہ اپنے گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے، جیسے آدمی جھک جاتا ہے نا، جھک کر کے چلا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آقا آپ جھک کر کے کیوں چلتے ہیں، آپ ایسے کیوں چلتے ہیں جیسے کوئی رکوع میں چل رہا ہو؟ تب حضرت عباس فرماتے ہیں یہ علی اکبر جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور میں نہیں چاہتا ہوں میں جب ان کے برابر میں چلوں گا تو میرے جسم کا سایہ علی اکبر کے جسم پہ پڑ جائے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تصویر مصطفیٰ پہ عباس کا سایہ پڑ جائے، اس لیے میں ان کے ساتھ میں جھک کر کے چلا کرتا ہوں۔ وہ حضرت عباس بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اولو محمد بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ آخر میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، ایک پرانا صندوق کھولتے ہیں، اس میں سے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف نکالتے ہیں، اس میں سے آپ ایک مقدس جبہ نکالتے ہیں، اسے زیبتن فرماتے ہیں، نانا مصطفیٰ کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں، بابا کی ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ تلوار جو تھی اس کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا تھا؟ ذوالفقار کا معنی آتے ہیں دو ٹکڑے کر دینے والی۔ مولا علی شیر خدا کی تلوار کی شان یہ تھی کہ جس جنگ میں آپ آ جاتے تھے تو تلوار آپ کی جس کے اوپر پڑ جاتی تھی وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا، اس لیے مولا علی شیر خدا کو تلوار کو ذوالفقار کا لقب دیا گیا تھا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرات گرامی، میرے آقا حسین ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اب میرے آقا حسین
अपने खेमे वालों को इकट्ठा करके अपनी बीवी शहरबानों को अपने सीने से लगाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, तू एक बादशाह की बेटी है, जब से तू मेरे निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। तेरा शौहर हुसैन तुझसे बहुत राजी है, बस इतनी गुजारिश है कि जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र से काम लेना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र से काम लेना। मेरे आका हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की वसीयत फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे सब्र से काम लेती रही। लिहाजा जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े बर्छी भाले लगते देखे तो सब्र करना। सब्र की तलकीन फरमाते हैं मेरे आका हुसैन अपने जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम अली औसत था। हज़रात, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, लेकिन तीनों बेटों के नाम मेरे आका हुसैन ने अली में रखे थे। आज हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए और मौलवी साहब से आप नाम पूछें, वो इस्लामी नाम आपको बता दे तो आप कहते हो ये हमारे फला खानदान में फला का नाम है, फला रिश्तेदारी में फला का नाम है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के लाडले इमाम हुसैन के 3 बेटे पैदा हुए, तीनों के नाम इमाम हुसैन ने अली रखे थे ताकि बाप की भी यादगार ताजा रहे। लेकिन पुकारने के लिए उनको एक को अली अकबर कर दिया, एक को अली औसत, एक का नाम अली असगर। अकबर बड़ा वाला, औसत बीच वाला, असगर छोटा वाला। ये पुकारने के लिए अलग से इमाम हुसैन ने पहचान के लिए अलग नाम रख दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे तीनों मैदान करबला में हैं, लेकिन 2 जामे शहादत नोश कर जाते हैं, एक अली अकबर, एक अली असगर। अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो मैदान करबला में अभी हैं। बुखार ने इतना कमजोर बना दिया है, बुखार ने इतना निढाल कर दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप तलवार का सहारा लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं पत्थर गिर जाते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने लाडले को सीने से लगाया। आज दुनिया का एक इंसान ये कहता है जालिम, कहता है हुसैन मैदान करबला में मुख्तार नहीं थे बल्कि मजबूर थे। अरे मेरा आका हुसैन मुख्तार था। आप उस जालिम ने ये कहा था कि हुसैन अगर मुख्तार होते तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए। हुसैन के बच्चे यके बाद दीगरे मैदान करबला में शहीद हो गए। अगर हुसैन मुख्तार होते तो हुसैन अपने बच्चों को बचा लेते। अरे मैं कहूंगा जालिम सुन ले, मेरा आका हुसैन मुख्तार था, मुख्तार। मेरे आका हुसैन ने जिसे देना था उसे दे दिया, और जिसे मेरे आका हुसैन ने ये फरमा दिया कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तू सलामत रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तू मदीना भी जाएगा। उसको मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मदीने तक जाएगा, तुझे अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। जिसे हुसैन को देना था मेरे आका हुसैन ने खुद दे दिया, और जिसे बचाना था उसे मेरे आका हुसैन ने बचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा आका हुसैन मुख्तार था। हज़रात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख में अभी आपके सामने बताऊंगा। मेरे आका हुसैन अब अपनी सवारी की तरफ आते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आका हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, मेरे गाजी क्या यजीदियों की तलवार देख करके डर गया है, क्या यजीदियों के नेज़े देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की बर्छियां देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की कसरत देख करके डर गया है। तब मेरे आका हुसैन की सवारी ने अपनी जबान में कहा था, नहीं मेरे आका नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी है। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था और कह रही थी, मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को मैदान करबला में। वहां से मेरे चचा अब्बास वापस नहीं आए, वहां से मेरा भाई अली अकबर वापस नहीं आया, वहां से मेरा भाई कासिम वापस नहीं आया, वहां से मेरे 6 माह का भाई असगर वापस नहीं आया। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब तक मैं बाबा के सीने पे अपना सर नहीं रख लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने बाबा के बाद में अपना सर किसके सीने पे रख कर सोऊंगी। मत ले जा मेरे बाबा को, बाबा के बाद में मैं किसके सहारे पे रहूंगी। मेरे आका हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, बेटी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। ये जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। बहन ज़ैनब की आवाज आती है, भाई हुसैन आज तुम दूल्हा बनकर के मैदान करबला में जा रहे हो। जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी बुराक की लगाम हजरत जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। और जब बाबा अली जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम तुम और भाई हसन पकड़ा करते थे। भाई अब तुम मैदान करबला में जा रहे हो, भाई आज तुम सेहरा सर पे बांध के जा रहे हो, भाई आज तो तुम दूल्हा बन करके जा रहे हो। ए मेरे भाई बहन को इजाजत
इजाजत दे दो, तेरी बहन बाहर निकल करके तुझे तेरी सवारी की लगाम को पकड़ करके रुखसत कर सके। मेरे आका हुसैन फरमाते नहीं बहन ज़ैनब नहीं, बल्कि तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है मेरी बहन, सब्र से काम लेना, तू बाहर मत निकलना। तुझे माँ फातिमा की वो बात याद नहीं है जब माँ फातिमा ने अपने शौहर अली से ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने पूछा था कि रात के अंधेरे में क्यों, तो कहा कि जिस फातिमा को दिन के उजाले में किसी ने नहीं देखा है, उस फातिमा को रात के अंधेरे में भी कोई ना देखे। वो हजरत फातिमा का पर्दा था। मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि तुम हजरत फातिमा की मोहब्बत का दम भरती हो, तुम हजरत ज़ैनब की मोहब्बत का दम भरती हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा मेलों में जाकर के घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के बाजारों में घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के मार्केट में घूमो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है अपने घर वालों से कहो। हजरात किरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैदान करबला में कितना एहतिमाम किया गया है पर्दे का। हजरत ज़ैनब ने कहा इजाजत दे दो भाई, आपकी बहन बाहर निकल करके आपको रुखसत कर सके। तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं नहीं मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, पर्दे में बाहर मत निकलना। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हमारे नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और तमाम रूए जमीन की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए पर्दे में रहना। मेरा आका हुसैन पर्दे की तलकीन फरमा करके अब मैदान करबला में आता है। यजीदियों को मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया था, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडिला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है, एक इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुल्हब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में 2 टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने, उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लाडले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने, इधर उधर भाग रहे थे लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं मेरे आका हुसैन, सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है। मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है, किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती।
किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता। लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? क़याम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा उला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो गौर करें, जब आदमी सजदे में जाता है ये सर उसका मीम बन जाता है, ये दोनों हाथ हे बन जाते हैं, ये कमर उसकी मीम बन जाती है और ये दोनों पैर सिमट करके दाल बन जाते हैं, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन सजदे में अपने नाना की तस्वीर बन जाते हैं और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, अंधेरी छा गई मैदान करबला में। अब कौन है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद में एक दूसरे को देखे? हजरात अंधेरी छा जाती है मैदान करबला में। हम आज भी रिवायतों में आता है कि खाना काबा के हर पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत पे खून का फव्वारा जारी हुआ था, बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे, उफक शफक जो तुम देख रहे हो, आसमान के किनारे जो देख रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत पे सुर्ख पड़ गए थे। मेरा आका हुसैन शहीद होता है, मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था, इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी नहीं थमा है। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। तमाम खेमों में जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, मस्तूरात खेमों के अंदर थी, औरतें खेमों के अंदर थी, अज़वाज मुतहरात खेमों के अंदर थी। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी शहरबानो खेमे के अंदर, बहन ज़ैनब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आज भी रिवायतों में आता है कि इतना अहम किरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन का नहीं था जितना हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। कितना बड़ा किरदार था हजरत ज़ैनब का, जरा तारीख उठा करके देखो। पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब बचा करके मदीने लेकर के आई है, पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब मदीने बचा करके लाई है। इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरात हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आँख की चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरत ज़ैनब को हमारा सलाम हो, हजरत ज़ैनब की इस्तिकामत को हमारा सलाम हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ला करके बाहर बिठा देती हैं, खेमों के अंदर आग लगा दी गई। इन जालिम यजीदियों ने तमाम मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली, जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारों ने नहीं देखा था, आज उनके मुकद्दस सरों से अपनी चादरें छीन ली गई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा कयामत खेज वो मंजर होगा। हजरत सकीना बालियां पहने हुए थी कानों में, इन एक जालिम यजीदी ने वो बालियां ऐसे छीनी कि आपके कानों से खून जाहिर हो जाता है, लेकिन ये सब सब्र कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को एक जालिम यजीदी ने अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शुहदा के सरों को अपने अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए थे, जुमे की नमाज का वक्त था, जब मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम पिया था, मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब का किरदार देखो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरती हो, हजरत फातिमा से मोहब्बत का दम भरती हो मुसलमानों। मैदान करबला का हाल सुनो, अपने सीने पे हाथ रख करके देखो, जब असर की नमाज का वक्त आता है तब हजरत ज़ैनब
ज़ैनब तमाम मस्तूरात से फरमाती है कि अब चलो असर की नमाज का वक्त आ गया है, चलो असर की नमाज पढ़ लेते हैं। घर की औरतों ने कहा था कि यहाँ पर पानी कहाँ है, आप फरमाती हैं पानी नहीं है तो तयम्मुम से तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि हमारे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता है। ये मुसलमानों ये नाना मुस्तफ़ा का फरमान है। हजरत गिरामी मेरे नबी फरमाते हैं जो फजर छोड़ दे उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, जो ज़ोहर को छोड़ दे उसके रिज़्क से बरकत खत्म कर दी जाती है, जो असर छोड़ दे उसके जिस्म से ताकत खत्म कर दी जाती है, जो मगरिब छोड़ दे उसके औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जो इशा की नमाज छोड़ दे उसकी नींद से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसकी नींद से आराम खत्म कर दिया जाता है। अभी देखना इशा की नमाज जो पढ़ करके नहीं लेटते हैं, पूरी रात बेचैन पड़े रहते हैं बिस्तर पे, पूरी रात बेचैनी में गुजारते हैं, और जो इशा की नमाज पढ़ के लेटता है वो अपनी बिस्तर पे आराम से सो जाता है। अरे रिवायत में आता है कि जो इशा की नमाज पढ़ के अपने घर पे कोई खुराफात ना करे, कोई नाजायज काम ना करे, कोई टीवी वीडियो ना देखे, आराम से आकर के नबी पे दुरूद पढ़ के कलमा तैयब पढ़ के बिस्तर पे सो जाए और फजर की नमाज में उठ जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए ऐसा है जैसे उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की है। कितना बड़ा अल्लाह पाक ने तुम्हें अजर दिया है, लेकिन समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ो। हजरत गिरामी असर की नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करने का हजरत ज़ैनब हुक्म देती हैं। हजरत रात की अंधेरी छा गई थी, अब यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है, चलो अब ये औरतें बची हैं इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा किसके हाथ भेजें, तब हजरत हुर की बीवी को पसंद करके लाए, पटा करके लाए, बोले चलो तुम ही जाकर के खाना भिजवा सकती हो, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ज़ैनब तलवार लेकर के बाहर बैठी हुई थी, फरमा रही थी मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है, मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ दिया है कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ। है कोई आए जरा मेरे सामने, तलवार हाथ में ले ली थी मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार, मौला अली शेर खुदा की लाडली बैठी है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुर की बीबी को खाना दिया, पानी दिया, कहा जाकर के तुम ही दे करके आओ। हजरत गिरामी अब हुर की बीबी आती हैं, हजरत ज़ैनब ने कहा कौन है वहीं पर रुक जाए, उसने कहा मैं हुर की बीबी हूँ, कहा किस लिए आई हो, कहा खाना और पानी लेकर के आई हूँ। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहाँ थी, जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहाँ थी, अब तो पानी की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। हुर की बीबी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ, मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है मुझे उसका बदला दीजिए, उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख दिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया नहीं बेटी ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए, नाना मुस्तफ़ा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा अच्छा नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ, जहाँ शुहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई, फरमाया बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे, वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शुहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा हाँ मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है कि मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफ़ा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा दिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सर मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा
सबसे बुलंद नेजा इमाम हुसैन के सर मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अरे देख ले, मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन कुरतरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह तारीख सुनते हुए चले। अब ये सर चल रहा है, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। कूफे से पहले एक गिरजा घर पड़ा, वहां के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम कहां जा रहे हैं। उस राहिब ने पूछा था, ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं माज़अल्लाह। उस राहिब ने कहा कि किसका? कहा ये इनका नाम हुसैन है। उसने कहा अरे वही हुसैन जो नाम मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं, वही हुसैन जिन जो तमाम नबियों के सरदार हैं उनके नवासे हैं। उसने कहा हाँ हाँ वही हुसैन। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने कहा तुम्हें गैरत नहीं आई? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उसी नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा 10,000 दिरहम दूंगा तुम्हें मैं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। ये आका हुसैन का सर जिस्म से अलग हुआ तब भी मेरा आका हुसैन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। देखो मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर को जब नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम यजीदी आगे बढ़े थे तब हजरत ज़ैनब ने एक नजर करबला के मैदान की तरफ डाली थी और जब अपने भाई हुसैन के जिस्म पाक को मैदान करबला में देखा था और सर को नेज़े पे बुलंद देखा था तब हजरत ज़ैनब ने कहा ए मेरे भाई क्या इसी दिन के लिए तुम हमें मदीने से लेकर के आए थे? ए मेरे भाई जब मदीने से तुम लेकर के चले थे तो कितने पर्दे के साथ लेकर के चले थे? जब तुम हमें मदीने से लेकर के बढ़े थे तब पर्दे के एहतिमाम के साथ चले थे। ए मेरे भाई आज अपनी बहन को तनहा छोड़ दिया, ए मेरे भाई आज अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। तो मेरे आका हुसैन के बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के जिस्म से जाकर के लिपट जाती है और कहती है मेरे भाई हमें किसके सहारे पे छोड़ दिया है? तो हुसैन का सर जो नेज़े पे बुलंद था, आवाज आती है मेरी बहन ज़ैनब तू ये मत समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तनहा छोड़ दिया है, तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। अरे तेरे भाई का सर करबला में, तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रह रहा है लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, तेरा भाई तेरे साथ साथ चल रहा है। अब कूफे के पास करीब पहुंचने वाले थे, उस गिरजा घर के राहिब ने कहा था 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालची में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए। लेकिन आओ तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया मेरे आका हुसैन का, जिसमें अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है। करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सर मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सर मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है ए मेरे आका हुसैन आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ दिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सर मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं, कूफे के करीब पहुंचने वाले थे। मुसलमानों सच्चाई बयान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तारीख सुनते जाओ मुसलमानों। जब ये काफिला कूफे में पहुंचने वाला था तब इब्ने ज़ियाद जालिम ने कहा था अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है, किसी ने पहले ही जाकर के खबर दे दी थी। कहा हाँ वही काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेराज समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका
इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने ज़ियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया, और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हज़रत सकीना हैं, बीबी शहरबानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चाँद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हज़रत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। रात ये वो मुकद्दस और पाकबाज़ बीवियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम यके बाद दीगरे इस लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हज़रत शहरबानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने ज़ियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया, वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हज़रात गिरामी, अब ये काफिला अंदर आ रहा है, देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हज़रत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत देकर के बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह की असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम, तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया, और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। हज़रात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हज़रत ज़ैनब की, ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है, मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हज़रात गिरामी, मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते आए हैं, नमाज की पाबंदी करते आए हैं। अब ये काफिला कूफे में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद का दरबार भरा हुआ था लोगों से। इब्ने ज़ियाद छली से इमाम हुसैन के लबों पे ये कह रहा था, हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर वो जब जालिम छड़ी मार रहा था, वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अरकम। खड़े हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है, बोले जालिम छड़ी हटा ले, मेरी आंखों ने खुद देखा है नबी को इन लबों को बोसा देते हुए, बोसा गाहे मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ हज़रात गिरामी, एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ रहा था, जिसका तर्जुमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात, ये मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने ज़ियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने ज़ियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में इस काफिले का इस्तेकबाल किया गया। हज़रात गिरामी, अब ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिमा एक तबाक में खाना लेकर के आती है, हज़रत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, यहाँ ये कूफे और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? और उस लड़की ने कहा था, उस बांदी ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी मखदूमा जो
छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है, उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा उसी को हमारे पास भेजो। अब उस ज़ईफा को भेजा जाता है। ज़ईफा डंडे का सहारा देकर के हजरत ज़ैनब के पास आती है। कमर लग चुकी थी ज़ईफा की, बूढ़ी हो गई थी वो ज़ईफा। आई हजरत ज़ैनब के पास में। हजरत ज़ैनब के बाल जो है चेहरे मुबारक पे थे, आपने अपने चेहरे मुबारक को अपने सर के बालों से छुपा दिया था। अब वो ज़ईफा आई, आकर के कहती है बेटी मुझसे बात करो। हजरत ज़ैनब ने उससे बात की। हजरत ज़ैनब का चेहरा वो ज़ईफा बहुत गौर से देख रही थी, वो बूढ़ी बहुत गौर से हजरत ज़ैनब का चेहरा देख रही थी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि तुमने ये खाना हमारे लिए किस लिए भेजा है? हम इस खाने को नहीं लेंगे, हम नबी के घर वाले हैं, हम ये खाना कबूल नहीं करेंगे। उस ज़ईफा ने कहा बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि किसी की वसीयत के मुताबिक मैं ये खाना तेरे पास लेकर के आई हूँ। कहा कैसी वसीयत? कहा बताओ तो सही। तब उस ज़ईफा औरत ने कहा था बेटी मुझे एक बात पहले तू ये बता दे कि मैं तेरे चेहरे को देख रही हूँ, तेरा चेहरा उस बेटी से मिलता है जो फातिमा की गोद में थी। बेटी मैं फातिमा तो ज़हरा के यहाँ पर कनीज थी, मैं फातिमा के यहाँ पर बांधी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे, फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है और मैंने भी उन दोनों के साथ में रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाए, हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसलिए रोजे रखे थे। और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूँ, आज से तू गुलाम नहीं बांधी नहीं, जा आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो बीबी फिज़्ज़ा ने कहा था ए बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी? तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हाँ इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना, जा तेरी ये बस तेरा एहसान उतर जाएगा। हजरात किरामी जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा, तू उस काफिले में जाकर के पानी पहुंचा देना। हजरात वो फिज़्ज़ा कहती है बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तेरा चेहरा फातिमा की यहाँ पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है बेटी, तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे उसी हुसैन को इन जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, ये उसका सर जा रहा है। फिज़्ज़ा की आंखों से आंसू निकल गए, हजरत ज़ैनब के सीने से लग जाती है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था वो बेटी मैं ही हूँ, वो बेटी मैं ही हूँ। फिज़्ज़ा ने कहा बेटी अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी। अब हजरात किरामी फिज़्ज़ा चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी, डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था तब हजरत ज़ैनब ने ऐसी मौलाली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया, इरशाद फरमाया ए यजीद अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत फिज़्ज़ा ने कहा जालिम यजीद तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है, तूने पाकबाज पाक खातूनों को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है, जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है, जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो आदमी की किस्मत संवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। उस जालिम यजीद ने कहा कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे? यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हबशा के रहने वाले थे, फिज़्ज़ा भी हबशा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आई उन हबशा के रहने वालों की, बोले यजीद ये हमारे यहाँ की बेटी है, ये हमारे यहाँ की शहजादी है फिज़्ज़ा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवारें फिर तेरे खिलाफ निकलेंगी, यजीद तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिज़्ज़ा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरात गिरामी एक कैद खाने के अंदर डाला गया इन तमाम असीरान अहले बैत को। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है उसके अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उसी के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन देखा हजरत ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां पाँव में बेड़ियां थी, आए जमीन पे खिसकते हुए अपनी फूफी ज़ैनब के पास में आकर के पूछा फूफी ज़ैनब आज तक हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, लेकिन आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटा यजीद के यहाँ से जो खाना हमारे लिए आता है वो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता, बेटा हम अपने पेट को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। बेटा आज 40 दिन होने जा रहे हैं लेकिन मेरे लाल आज तुम्हारी फूफी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हजरात गिरामी अल्लाह अल्लाह ये वो घराना है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, ये वो घराना है, ये वो मुकद्दस घराना है। अल्लाह अकबर जिस घराने के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हजरात गिरामी अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया, बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आखिरी बात बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरी 3 शर्तें हैं,
ایک تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں. کہا دوسری یہ کہ آج جمعے کا دن ہے, خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دیں. تیسری یہ کہ میرے قافلے کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا. حضرات یزید بولا کہ میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, کیونکہ کوئی اپنے اوپر جرم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. شمر سے پوچھا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا. عمر ابن سعد سے پوچھا, بولا میں نے نہیں کیا. خولی سے پوچھا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا. سب انکار کر رہے تھے. یزید نے کہا کہ ایسے تو پتہ لگانا مشکل ہے, کیونکہ میں تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا, یہی لوگ انہی لوگوں نے شہید کیا ہے. اب یہ لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ شرط تمہاری پوری نہیں ہو سکتی. دوسری بتائیے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا. اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے, خطبہ دیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں. آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے. یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے. یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے. مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ. مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی, اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا. مؤذن خاموش ہو جاتا ہے. پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے. یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے, ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی. یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے, جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا, یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ. اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے. 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا. جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا, دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے, ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے. خون ٹپک رہا تھا. امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا. میدان کربلا میں ایک یہ روایت ملتی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا, وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا. حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے, روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا. ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا. ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. یہ 3 روایتیں ملتی ہیں. اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے. اللہ اکبر, کس شان سے آئے تھے, کس شان سے آئے ہیں. مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے, آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں. امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ, یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے. حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں, آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے, کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا. حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے. جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا, جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے. سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی, سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے. جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئی. محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے. بھائی بھائی ہوتا ہے, بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے, بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے. آئے مدینے کے باہر, دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت کو دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا. سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے. نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا. وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا, وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا, نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے. نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے, جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے, جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے, اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تک کرا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں, کبھی اپنی ماں شہربانو کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں, پوچھ رہی ہے میرے بھائی علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو, میرے بھائی علی اکبر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو, میرے بھائی قاسم کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو. پورا قافلے کے گلے لگ لگ کے حضرت سغرا پوچھ رہی تھی. وقت گزرتا چلا گیا. یزید کے ظلم کا بازار ابھی تھما نہیں تھا. اس ظالم نے ایک لشکر ایسا بھیجا
بھیجا جس نے مدینے پہ حملہ کرا، جس نے مکے پہ حملہ کیا، مدینے کی پاک باز پاک تینت ہستیاں جن کی پارسائی کی قسم یاد کی جائے، ان کے ساتھ میں ظالم نے 3 دن تک اپنے لشکریوں کو حلال رکھا۔ حضرات اس ظالم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا جس میں خانہ کعبہ کا غلاف جلا، لیکن ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، وہ جانتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، گھڑی گزرتی چلی گئی، ایک نوجوان اٹھا تھا جس کا نام مختار سقفی تھا، اٹھا، اٹھنے کے بعد میں اس نے مدینہ منورہ آیا، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس آیا، بولا میں حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ بولے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئے امام زین العابدین کے پاس میں، خلافت کو لے کر کے آپس میں معاملہ ہو گیا تھا۔ محمد بن حنفیہ کہتے تھے میں تمہارا چچا ہوں، میں مصلی پہ کھڑا ہوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے کہ میں کھڑا ہوں گا۔ جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی تو حجر اسود خانہ کعبہ کے پاس میں یہ پہنچے دونوں، کہا کہ فیصلہ حجر اسود کرے گا، وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا، کہا حجر اسود جس کے لیے کہہ دے گا کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے وہیں کھڑا ہوگا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کعبے کا طواف کر کے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اے حجر اسود بتا اب امامت کا حقدار کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا حجر اسود سے۔ امام زین العابدین سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا بتا حجر اسود امامت کا حقدار کون ہے؟ تو حجر اسود سے آواز آتی ہے کہ اس دنیا میں حضرت فاطمہ کے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں۔ اور امام زین العابدین جو تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے تھے، سگے بیٹے تھے، اس لیے وہ امامت کا حق انہی کا بنتا تھا۔ حضرات مختار سقفی نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ المختصر یہ محمد بن حنفیہ اس کے ساتھ ہو گئے، امام زین العابدین سے اجازت لینے کے لیے آیا۔ امام زین العابدین بہت صبر کرنے والے تھے، آپ فرماتے ہیں وہ ظالم چھپ جائیں گے اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کیسے ان سے بدلہ لیں گے؟ تب اس مختار سقفی نے کہا تھا حضور اگر وہ پہاڑوں میں بھی چھپ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا۔ اس مختار سقفی نے ایک لشکر تیار کیا اور یزید تو مر چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 22 سال عمر میں چھوٹا تھا یہ یزید، یہ سن ہجری 25 میں پیدا ہوا، امام حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹا تھا عمر میں امام حسین سے۔ یزید تو مر چکا تھا، 38 سال کی عمر تقریباً اس کی ہوئی ہے، 38 سال کی عمر ہی میں اس دنیا سے چلا گیا ظالم، لعنت لے کر کے اپنے سر پہ اپنے اوپر۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مختار سقفی اٹھا تھا، اس نے عمر ابن سعد کو قتل کرایا، اس نے ہرملا کو بلایا، ہرملا کو پکڑوایا، پکڑوانے کے بعد اپنے لشکریوں سے کہا کہ جس کا نشانہ سب سے زیادہ تیز ہو تیر چلانے میں وہ میرے سامنے آئے۔ ایک آیا بولا میرا نشانہ بہت اچھا ہے، اس نے کہا کہ اس کے تیر ایسا مارنا کہ جہاں اس کے حلق پہ لگ کر کے پار نکل جائے، اس نے ایسا ہی تیر مارا، ہرملا کے حلق سے نکل کر کے پار نکل گیا۔ حضرات گرامی، اس مختار سقفی نے خولی کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، یہ ظالم گھر کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا، اس کی بیوی تو پہلے ہی سے اس سے ناراض تھی، اس کے خلاف تھی، لیکن جب مختار کے آدمی آئے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا، بولا بتانا مت، تو اس کی بیوی سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے خولی، تو اس کی بیوی نے منہ سے تو کہہ دیا مجھے نہیں پتا، لیکن اشارے سے کہہ دیا کہ گھر کے اندر ہے۔ پکڑ کے لے گئے، ظالم کو قتل کرا، عمر ابن سعد کو قتل کرا، خولی کو قتل کرا، ایک لشکر بھیجا چھوٹا سا، اس نے جو ہے ابن زیاد کو جا کر کے قتل کرا، جو بھی اس نے پوچھ کر کے جن نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا اس نے چن کر کے مدینہ منورہ سے امام زین العابدین سے اجازت لے کر کے اس نے چن کر کے ان لوگوں کو قتل کرا دیا تھا۔ امام حسین کا لہو رنگ لایا، امام حسین کا خون رنگ لایا، اس نے تو سوچا تھا یہ یزید نے کہ اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے، تاریخ کربلا سے پہلے، یزید نام برا نہیں، معنی بہت اچھے اس کے، لیکن تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ مجھے بتا دو کسی کا نام یزید رکھا گیا؟ کسی کا نام یزید نہیں رکھا گیا، اور میرے آقا حسین کا نام آج گھر گھر میں ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، ہر جگہ حسین کے نام لینے والے ہیں، آج ہر جگہ حسین کا نام ہے۔ حضرات مختار سقفی نے بدلہ تو لیا، لیکن آخر میں یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معذ اللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قتل کیا۔ حضرات یہ تاریخ کربلا ہے۔ امام زین العابدین کی ایک بات سن لو، امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے تھے تو آپ نے 2 کام مدینے میں کیے تھے، ہو سکے آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ 2 کام مدینے میں امام زین العابدین نے کیے، ایک کام تو یہ کہ آپ نے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس
मदरसे में बैठ करके आप हदीस पढ़ाया करते थे, दर्स दिया करते थे। और दूसरा काम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये किया था कि आपने एक लंगर खाना खोला था। लंगर पे जो भी गरीब आता, भूखा आता, प्यासा आता, आप उसे खाना खिलाया करते थे। एक दिन एक शख्स ऐसा आया जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देख करके पहचान लिया। आपने फरमाया अपने गुलाम से कि इसे खाना खिलाओ, इसे ठंडा पानी पिलाओ। उसे ठंडा पानी पिलाया गया। वो समझ रहा था कि मुझे हुसैन ने पहचाना, हुसैन के बेटे ने पहचाना नहीं। उस जालिम ने दूसरे दिन फिर आकर के वही खाना खाया, फिर अच्छा खाना खिलाया गया, उसे अच्छा पानी पिलाया गया। तीसरे दिन फिर आ जाता है खाने के लिए, बोला बहुत अच्छा मौका है, अली का बेटा पहचान ही नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ। तीसरे दिन फिर खाना खाया, फिर पानी पिया ठंडा। तीसरे दिन पूछता है जरा आप ये तो बताइए कि आपने मुझे पहचान भी लिया कि मैं कौन हूँ खाना खाने वाला? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था जालिम, मैं तुझे कैसे फरामोश कर सकता हूँ, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? इसने कहा कि बताइए मैं कौन हूँ? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था जालिम, तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में नेज़ा मारा था। तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के ऊपर बर्छी का वार किया था। उस जालिम से इमाम हुसैन के लाडले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम ने कहा था कि इजाजत दे दो, मैं इसका सर अभी कलम कर दूं, अभी बदला पूरा हो जाएगा। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अरे इसे कत्ल मत करो, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जालिम है, जालिम, ये इसका जुल्म था जो इसने हमारे ऊपर किया है। याद रखो मुसलमानों, ये घराना कैसा घराना है, हर मकाम पे हमें सब्र का पैगाम देता है, हर मकाम पे हमें इस्तिकामत का पैगाम देता है, हर मकाम पे हमें सब्र से काम लेने का हुक्म देता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उस जालिम ने कहा था कि आपको कत्ल करना है तो मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन आप अपने हाथों से कत्ल कीजिए, मुझे किसी और के हाथों से कत्ल मत कराइए। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जालिम, तुझे मारना होता तो पहले दिन ही मैं तुझे कत्ल कर देता, लेकिन याद रख उसने कहा जब मुझे पहचान लिया था तब आपने मुझे खाना क्यों खिलाया, आपने मुझे पानी क्यों पिलाया? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जालिम, जब हम तेरे यहाँ पर गए थे तो तूने जो हमारे साथ में सुलूक किया था, जो हमारा खाना बंद किया गया था, जो हमारा पानी बंद किया गया था, वो तुम्हारे मशवरे से किया गया था। अरे जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे तो वो तेरी मेहमान नवाजी थी जो तूने हमारे साथ में की है। आज तो तू हमारे नाना के मदीने में आया है, आज तो तू हमारे नाना के शहर में आया है, आज तो तू हमारे नाना के मुकद्दस दयार में आया है। अरे देख ले हम नबी के घर वाले हैं, देख ले हम नबी की आल हैं। जब हम तेरे यहाँ गए थे तो जो तूने हम पे सुलूक किया, हमारा खाना पानी बंद किया, हमारे खानदान को शहीद किया, जो तेरी मेहमान नवाजी थी, आज तू हमारे यहाँ पर आया है। ये खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है, ये पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले, अल्लाह अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तमाम शाहो गदा पढ़ रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। आला हजरत ने फरमाया था खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। नेमतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं, अज़मतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं, शोहरतें मिलती हैं तो इस दरबार से मिलती हैं। इस दरबार का पैगाम याद रखो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद चाहो। हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होती है, हुसैन की जिंदगी नमाज पे खत्म हो जाती है। हमें दो पैगाम मिले नबी के घराने से कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और नमाज की पाबंदी करते रहना चाहिए। हुसैन के गुलाम हो, हुसैन की याद मनाओ तो जायज तरीके से मनाओ, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, हुसैन के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हो। मेरे आका हुसैन ने नमाज की पाबंदी की है, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि हमारे आका हुसैन ने मैदान करबला में सजदे को नहीं छोड़ा था, आज उनके गुलाम यहाँ पर नमाज को नहीं छोड़ेंगे। ये हुसैन का पैगाम है, हुसैन का पैगाम याद रखो। मैं ये बात अपनी हर तकरीर में ये कहता हूँ, मेरे आका हुसैन की अजमत बड़ी है, मेरे आका हुसैन की शान बड़ी है। जालिम यजीदियों ने तो ये समझा था हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई चर्चा करने वाला नहीं होगा। अरे मेरे आका हुसैन की शान तो ये है कि कल भी हुसैन का जिक्र हो रहा था, आज भी हुसैन का जिक्र हो रहा है, क़यामत तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, फिरौन भी इस दुनिया में आया है, नमरूद भी इस दुनिया में आया है, शद्दाद भी इस दुनिया में आया है, हामान भी इस दुनिया में आया है, अबू जहल भी इस दुनिया में आया है, अबू लहब भी इस दुनिया में आया है, उतबा भी इस दुनिया में आया है और यजीद भी इस दुनिया में आया है। लेकिन आप मुझे ये बता दो, ना तो फिरौन के रोने पे मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना तो नमरूद के मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना अबू जहल के मरने पे किसी ने आंसू बहाए हैं, ना यजीद के मरने पे कोई रोया है। अरे यजीद के मरने पे ना कोई रोया है, ना कोई रोएगा। और नहरे फुरात के किनारे पे शहीद होने वाले हुसैन पर आज भी कायनात का जर्रा जर्रा आंसू बहा रहा है, आज भी कायनात का जर्रा जर्रा याद कर रहा है। ना तो फिरौन को कोई याद कर रहा है, ना तो नमरूद को कोई याद कर रहा है, ना तो अबू जहल को कोई याद कर रहा है, ना तो यजीद को कोई याद कर रहा है। और मेरे आका हुसैन की शान तो ये है कि आज कुर्तला में मुसलमान याद कर रहे हैं, फतेहगंज में मुसलमान याद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हुसैन का नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में हुसैन का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लिया जा रहा है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा
हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन के नाम लेवा जिंदा है, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। इसलिए मैं यही अर्ज करूंगा, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सियादत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे वकार को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अक़वाल को सलाम, हुसैन तेरे अफ़आल को सलाम, हुसैन तेरे अमाल को सलाम, हुसैन तेरी हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे अहले खाना को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको कुरान के पारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निज़ाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ है, मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।